হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ ক্লাস ধ্যান মন্ত্র। তোমরা সবাই ভালো আছো? হোপ অল অফ ইউ আর ওয়েল। আমি আজকে আবার একটা নতুন জায়গায় এসেছি, যেটা হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচ। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়ে গেছো টাইটেলে। ফিগার অফ স্পিচ ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, তোমাদের যদি আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, সেটা হচ্ছে, ধরো বাড়ির মহিলারা কোথাও গেলেন, নর্মাল ড্রেসে নয়, অলংকৃত হয়ে, মানে ফেস মেকআপ নিয়ে বা ভালো গয়নাগাটি পরে যদি কোথাও যান, তো সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু একটু আলাদা রকম সুন্দর দেখতে লাগে। তো এই জায়গাটাই হচ্ছে মানে কাউকে আরেকটু পরিপাটি করে তোলা, তার নাম হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচ। যখন আমরা একটা নর্মাল কথা বলি, সেই নর্মাল কথার বাইরেও যদি সেই কথাটাকে আমরা একটু অলংকৃত করে বলি, তাহলে সেই অলংকার লাগানোটাকে বলা হয়, শব্দকোষের মাধ্যমে অলংকার লাগানোটাকে বলা হয় ফিগার অফ স্পিচ। যাই হোক, আমি আজকে ক্লাসে এবার একটু ঢুকছি, দেখো। দেখো, ফিগার অফ স্পিচের ডেফিনেশনটা কি হতে পারে, কাকে আমরা ফিগার অফ স্পিচ বলবো, সেটা একটুখানি আমি এখানে বলে দিই। আমি তোমাদের দেখছো স্ক্রিনে আসছে যে ফিগার অফ স্পিচ ইজ এ ওয়ার্ড অর এক্সপ্রেশন which is used not with its same meaning, but this word or expression is used in an imaginative way to make a special effect. In one word, it can be said alanka, which means an ornamentation of speech. সাজিয়ে গুজিয়ে কোনো স্পিচকে বলা অর্নামেন্টেশন করে, সেটার নামই হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচ। দিস ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ ফিগার অফ স্পিচ। বিফোর we going to classification, I will give you some examples over here. You can see first example is given, a bahut sundar ho or you are beautiful. It is not figure of speech. Chandi jaisa rang tera sone jaisa baat. It is called figure of speech. It means a statement in someone's imagination expressing with speech of alankar is called figure of speech. तो figure of speech क्या होता है? Speech of अलंकार होता है। ओके, जैसे फिल्म में तुम सुना होगा, चांदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदनी के चामच से चाटनी चटाई। ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। बड़ा चढ़ा के बोलना, कोई भी चीज को और भी सुंदर करना, वही होता है फिगर ऑफ स्पीच। ক্লাসিফিকেশন, দেখো বেশ কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে। দেয়ার আর মেনি ক্লাসিফিকেশনস ইন ফিগার অফ স্পিচ: alliteration, repetition, assonance, hyperbole, paradox, personification, simile, pun, metaphor, oxymoron, hyperbole, litotes, climax, anticlimax, imagery। এই ক্লাসিফিকেশন গুলো আস্তে আস্তে আমরা একটুখানি দেখি। প্রথমেই আমরা চলে যাব সিমিল। দেখো, সিমিল বলতে আমরা কি বুঝি? সিমিল হচ্ছে, simile is taken for similar type of comparison between two different ones by using as and like। দুটো কনজাংশন, একটা হচ্ছে as, একটা হচ্ছে like দিয়ে যদি দুজনের মধ্যে আমরা কম্প্যারিজন করি, দুজনের মধ্যে দুজন আলাদা আলাদা বস্তু বা দুজন আলাদা আলাদা লোকের মধ্যে যদি আমরা কম্প্যারিজন করি as বা like লাগিয়ে, তখন সেটা হয় কি সিমিল। अगर हम दो चीज के साथ या दो आदमी के साथ as और like ये दोनों यूज करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं ना, उसको कहते हैं सिमिल। सो एग्जाम्पल, ही इज एज ब्लैक एज कोल। देखो यहाँ पे एज के इस्तेमाल किया गया है ना, আমরা এখানে as এর ব্যবহার করছি, ही इज एज ब्लैक एज कोल। तो ही के साथ कोल का कंपैरिजन हो रहा है, ही के साथ कोल का, तो दोनों अलग अलग चीज का कंपैरिजन हो रहा है, इसको कहते हैं सिमिल। ओके, he is as black as coal, he is as blind as a bat, ও বাদুড়ের মতন কিন্তু অন্ধ। they fought like cats and dogs, they and cats and dogs दोनों अलग चीज होता है। he is as funny as a barrel of monkeys, तो he और monkeys अलग होता है। and he runs like a wind, वो ऐसे भागता है जैसे हवा के जैसा। तो ये जो होता है ना, ये देखो लाइक और एस के इस्तेमाल किया गया, और इसको कहता है सिमिल। ये पहला फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट इज मेटाफॉर। व्हाट इज मेटाफॉर? इट इज ऑलमोस्ट लाइक सिमिल, बट मेटाफॉर में तुम एज और लाइक की इस्तेमाल नहीं कर सकोगे।
इंस्टेड वी कंपेयर टू डिफरेंट वंस डायरेक्टली। जैसे वहां पे हम एज और लाइक यूज करके हम क्या बोलना चाहते थे, जैसे तुम कोल जैसा काला हो, जैसा। यहाँ पे जैसा वैसा नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे यू आर ए कोल, यू आर ए चीता, यू आर ए विंड, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इसको कहता है मेटाफॉर। ओके, देखो एग्जांपल, यू आर ए स्ट्रेंज मैन, ये होता है मेटाफॉर। बट इसको तुम घुमा के अगर एज का इस्तेमाल करते हो, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने दिया, यू आर एज स्क्वायर एज ए स्ट्रेंज, यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ, सेम सेंटेंस को मैंने सिमिल से यहाँ पे प्रेजेंट किए। नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाओ, यू आर ए चीता, ये होता है मेटाफॉर। बट इसको अगर तुम एज या लाइक लगा के करते हो तो वो हो जाता है सिमिल, जैसे यू रन लाइक ए चीता। ओके, सिमिलरली थर्ड एग्जांपल इज गिवन फॉर मेटाफॉर, कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट। पर इसको अगर तुम सिमिल करते हो ना, कैमल इज एज यूजफुल एज ए शीप ऑफ डिजर्ट, तो यहाँ पे एज लगा के वो हो गया सिमिल। तो सेम सेंटेंस मेटाफॉर में भी हम ला सकते हैं और सिमिल का यूज भी हम कर सकते हैं। इग्नोर करना है यहाँ पे एज और लाइक, दैट इज द वाइटल पॉइंट। देखो नेक्स्ट, एलिटरेशन। व्हाट इज एलिटरेशन? एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन होता है जब कोई सेंटेंस दिया जाएगा, वही सेंटेंस में जितने सारे वर्ड होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड होगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड, पहला लेटर जो आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से होना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो। देखो पहले एग्जांपल दिया गया, माय डियर डियर इज ए डियर, मेरा जो बिलव्ड हिरन है वो कॉस्टली है। डियर, लास्ट डियर का मतलब होता है कॉस्टली। तो डियर डियर, ज्यादा से ज्यादा वर्ड देखो कॉन्सोनेंट जो है उसी से शुरू हुआ है और एक ही जैसा साउंड हो रहा है, सेम साउंड हो रहा है। ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड होना है। डियर डियर इज ए डियर, तो ये है तुम्हारा एलिटरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस में भी देख लो, सली सेल्स सी सेल्स बाय द सेसो, तो यहां पे भी तुम देखो, सली सेम साउंड, सेल्स सेम साउंड, सी सेल्स सेम साउंड, सीशो ये भी सेम साउंड। तो ये हो गया एलिटरेशन। और पहला लेटर देखो एस है ना, कॉन्सोनेंट है ना, तो ये होता है एलिटरेशन। तो हर वर्ड जो होगा, ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड होगा, पहला साउंड जो होगा वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से जाना है, इसका नाम होता है एलिटरेशन। जैसे ए गुड कुक कुड कुक एज मेनी कुकीज एज ए गुड कुक हु कुड कुक कुकीज, सुने हो ना ये। और एक भी है, जैसे चांदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चौक पे चांदनी के चम्मच से चाटनी चटाई, ये भी होता है। तो इसमें क्या देखोगे, जो हर जो पहला वर्ड का जो पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको कहता है फिगर ऑफ स्पीच का एलिटरेशन। उसके आगे देख लो, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे मैंने दे दिया। नेक्स्ट आएगा हाइपरबोल। व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल मींस बढ़ा चढ़ा के कुछ बात बोलना। इन हाइपरबोल वी exaggerate, means which we say something by out of its limit or without any genuine logic. देखो एग्जाम्पल में चले जाओ, I was so tired I could sleep for years. कोई एक है क्या जो एक साल भर वो सोते जाएंगे? ऐसे हो सकता है? ये तो बड़ा चढ़ा के बोलना होता है ना। तो इतना मैं टायर्ड हूं कि मैं एक साल तक मैं सो सकता हूं, ये तो गलत है। तो ये बड़ा चढ़ा के बोलना होता है हाइपरबोल। जैसे आई एम हंग्री, नेक्स्ट एग्जांपल, आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक पूरा हॉर्स को खा जाऊंगा। ये कोई खा सकता है कि भाई खाओ ना, आके खाओ, हॉर्स के खा के दिखाओ? ये तो हो नहीं सकता है। ये होता है हाइपरबोल। आई कुड वॉक ए मिलियन माइल्स टू रीच यू, अगर मैं कहता हूं ना तुम्हारा पास में है, मिलियन माइल्स मैं वॉक करके भी आ सकता हूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज बोलने का मतलब क्या होता है कि मेरा जो डिजायर है उसको ज्यादा सा ज्यादा मैं एम्फसाइज कर सकता। आई कुड वॉक ए मिलियन माइल्स टू रीच यू। जैसे लास्ट सेंटेंस में दिया गया, ही मेंटेन्ड दिस कस्टम फ्रॉम औरंगजेब्स टाइम, मैंने मतलब क्या, कोई औरंगजेब टाइम के हिसाब से वो मेंटेन कर सकते ये कस्टम? कर नहीं सकता है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये, मतलब वो बड़ा चढ़ा के इसको बोल रहे हैं, to give a greater emphasis, that is called hyperbole. Okay?
तो यहाँ पे देखो, it is an exaggeration without logic and produces strong feelings and impressions as though one strong's ability, कि वो कर सकता है, ये इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए वो बड़ा चढ़ा के कोई चीज बोलता है, उसको कहता है हाइपरबोल। नेक्स्ट थिंग हम जाएंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में देखो एसोनेंस दिया गया। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस मतलब इन एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, वो पहला जो वर्ड होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से होना है, बट नेक्स्ट साउंड इन दैट पार्टिकुलर वर्ड विल बी विथ ए सेम वावेल साउंड। इन एसोनेंस एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस दैट बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड, वो जो वर्ड होगा ना, वर्ड का पहला जो साउंड आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से होना है, और उसी वर्ड के अगले जो लेटर होगा वो वावेल साउंड, एक ही जैसा वावेल साउंड को होना है। चलो देख लेते हैं। He was here with gear, देखो यहाँ पे देखो, ही का मतलब ही, हियर का मतलब भी ही, विद गियर गी, ही गी हो गया ना। ही वॉज हियर विद गियर, यहाँ पे देखो ही जो शुरू भाई पहला जो वर्ड है ही, वो पहला लेटर क्या था? एच था, वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड्स वहां पे आ गया। और वाज सो वर्ब है, उसको छोड़ के चलो। हियर में देखो एच इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड, एंड गियर जो है उसका भी पहला जो लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड जी से गया है। बाद में जो हर वर्ड का बाद में जो तुम देख रहे हो जो साउंड आएगा वो सेम वावेल साउंड होना है, सेम वावेल साउंड होना है। जैसे ही के बाद देखो ए है, मतलब ई है, वो वावेल साउंड है। उसके आगे देखो हियर, तो ईयर है ना, वो भी ई साउंड से जा रहा है, तो सेम वावेल साउंड। ही के भी ई आएगा, ही का भी ई आया है, और हियर का भी ई आया है, और गियर का भी ई आया है। तो ये सारी चीज हो गया एसोनेंस के जरिए, तो इसको कहते हैं एसोनेंस। और दूसरे एग्जांपल देखो, बियर इज नियर बट नो नीड टू हियर, तो बियर पहला जो वर्ड है वो बी से मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, और ईयर देखो एक वावेल साउंड वहां पे आ गया। फिर देखो नियर, नियर में एक एन है कॉन्सोनेंट साउंड, और बियर जैसा ईयर आ गया, वहां पे सेम वावेल साउंड आ गया। और उसके आगे देखो हियर दिया गया, लास्ट में हियर दिया गया, तो एच इज कंसोनेंट साउंड, एंड बाकी जो लेटर है वो ई सेम साउंड आ गया, मतलब ईयर, ईयर एंड ईयर। तो तीनों जो शब्द का जो वावेल साउंड है वो सेम वावेल साउंड से जा रहा है, ई से जा रहा है, इसको कहते हैं एसोनेंस। ओके, नेक्स्ट देखो डू गुड हैव गुड, यहाँ पे देखो पहला जो वर्ड दिया गया वो डू, डी है। ओके, उसके आगे देखो गुड एंड गुड, गुड का भी जी कॉन्सोनेंट साउंड है, ऊ देखो, डू का भी ऊ हुआ है, गुड का भी ऊ हुआ है, एंड लास्ट में जो गुड है उसका भी वावेल साउंड ऊ हुआ है। तो मतलब ऊ तीनों साउंड देखो सेम जा रहा है, वावेल साउंड जो तीनों साउंड है वो सेम जा रहा है, और हर वर्ड में पहला जो लेटर है वो देखो कॉन्सोनेंट साउंड से जा रहा है। जैसे डू का डी है कंसोनेंट, गुड का जी है कंसोनेंट, एंड लास्ट में जो गुड दिया गया वो भी कॉन्सोनेंट साउंड से जा रहा है। और फाइनली जो एग्जांपल दिया गया नो गेन विदाउट पेन, यहाँ पे भी तुम देखो नो गेन विदाउट पेन के पेन में जो दिया गया वो नो कॉन्सोनेंट साउंड से जा रहा है, एन। उसके बाद देखो गेन कॉन्सोनेंट साउंड से जा रहा है, पहला लेटर जो है वो जी, एंड पेन लास्ट में जो पेन दिया गया वो भी कॉन्सोनेंट साउंड से जा रहा है, पी, पेन। और बाकी जो वावेल साउंड है हर वर्ड का वो देखो गेन और पेन सिमिलर साउंड आ रहा है ना, वो दोनों वर्ड्स को हम देखेंगे। तो ए आई एन ए से जा रहा है, और पेन का भी ए है वो भी ए से जा रहा है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ड तुमको ऐसे जाएगा, तो जो मिला जुला के जो वर्ड होता है उसी तरह को हमको वर्ड चुनना है जिसमें सेम साउंड वावेल साउंड आ रहा है। एसोनेंस में जो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कॉन्सोनेंट साउंड, बट नेक्स्ट साउंड आफ्टर कॉन्सोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड विल रेफर सेम वावेल साउंड, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। देखो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम जाएंगे पान में। सो पान क्या होता है?
In pun, we refer double meaning to refer a joke-like statement. In order to create a humor, the point of pun is to make reader laugh. जैसे कोई एक सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं तो वो सुन के रीडर जो है वो हंसते हैं, तो उसका फीलिंग ऐसा कुछ होता है, तो इसको कहता है पान। चलो एग्जाम्पल में चलो। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया, पायलट्स हैव इजी एक्सेस फॉर आइज एंड क्लाउड्स। पायलट्स क्या होता है? जो आकाश में हर वक्त रहते हैं, वो प्लेन उड़ाता है। तो इसका मतलब क्या है? उसका पास एक स्टोरेज होगा जहां पे आइज भी बहुत इजीली वो उसको एक्सेस कर सकता है, और क्लाउड को भी वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इसके अनुसार जो ऑथर ने ये जो सेंटेंस दिया, ये एक ह्यूमर क्रिएट करता है। तो जो भी रीडर उसको पढ़ेगा तो उसको हंसी आ जाएगा, इसको कहते हैं पान। दूसरा सेंटेंस में चलो। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन अवर टाउन इज अ लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। मतलब इतना टॉलेस्ट बिल्डिंग हमारा टाउन में क्यों है भाई? ये कोई इसके अंदर कोई थाउजेंड ऑफ स्टोरीज है क्या? तो ये जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करके ऑथर बोल रहे हैं, तो ये सुनने भी थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट होता है। और लास्ट में चलो, द एलियंस आर प्लानिंग टू सर्व मैन फॉर डिनर। तो एलियंस ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहा है डिनर के लिए, ये तो एक हास्यास्पद सेंटेंस है ना, ये भी एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जब ऑथर ने देते हैं या एग्जाम में आता है, तुम आंख बंद करके इसको कह सकते हो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ना, पान फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे लिटोटिस। व्हाट इज लिटोटिस? It consists a negative sentence in which an affirmative sense is expressed after negating its opposite. One sense is contradictory to another sense. कि वो रिच नहीं है, वो धनी नहीं है, वो रिच नहीं है, इसका मतलब एफर्मेटिव एक निकलता है ना कि वो गरीब है। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस जिसका एफर्मेटिव एक्सप्रेशन भी होता है उसको कहते हैं लिटोटिस। चलो एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल जो दिया गया, इट इज नॉट गुड वेदर टुडे ड्यू टू साइक्लोनिक इफेक्ट। मतलब क्या होता है? ये तो लिटोटिस हो गया। मतलब क्या होता है? इट इज रफ वेदर टुडे, आज वेदर ठीक नहीं है, इट इज रफ वेदर टुडे। पहला सेंटेंस तुम नेगेटिव में बोल रहे हो कि आज वेदर ठीक नहीं है, वो होता है लिटोटिस। पर बाद में जब तुम इसको एफर्मेटिव सेंस देते हो ना, उसको मतलब क्या निकलता है? इट इज रफ वेदर टुडे। तो जो सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंस भी होता है वो सेंटेंस को कहते हैं लिटोटिस। जैसे दूसरे एग्जांपल में चलो, यू आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू यूज्ड टू बी। तुम इतना ब्यूटीफुल नहीं हो जैसे तुमको होना था। ये जो सेंटेंस दिया गया ना, ये तो नेगेटिव में है, इसलिए ये लिटोटिस हो गया। जिसका एक एफर्मेटिव सेंस भी निकलता है, वो सेकंड लाइन में मैंने लिख दिया कि प्रीवियसली यू वर वेरी ब्यूटीफुल बट आज तो तुम नहीं। तो इसका जो एफर्मेटिव जो सेंस निकल गया, इसका मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस है वो तुम्हारा लिटोटिस के जरिए जाएगा। और लास्ट जो एग्जांपल दिया गया, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, मतलब इट इज नॉट ए डिफिकल्ट साइंस, इसका भी एक एफर्मेटिव सेंस होता है। वो क्या? इट इज अ सिंपल साइंस। तो ये जो पहला जो इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, जो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो है लिटोटिस, बिकॉज इट हैज एफर्मेटिव सेंस। चलो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में हम जाएंगे। Next is repetition. What is repetition? In repetition, word or phrase is used multiple times in literature or poetry to create a rhythm or emphasize a word or phrase. इसका मतलब क्या होता है? रिपीटेशन में क्या होता है ना, कोई एक वर्ड और फ्रेज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो सेंटेंस में कोई वर्ड और फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। मेनली ये कहां पे यूज होता है? लिटरेचर और पोएट्री में यूज होता है टू क्रिएट ए रिदम और एम्फसाइज, इंपॉर्टेंस ज्यादा देने के लिए वो फ्रेज के ऊपर या वर्ड के ऊपर, इसलिए ये रिपीटेशन होता है। क्यों रिपीटेशन होता है ना? एक ही सेंटेंस में 2-3 बार अगर कोई वर्ड और फ्रेज का इस्तेमाल होता है, मतलब वही पार्टिकुलर वर्ड के ऊपर एम्फसाइज दे रहा है टू क्रिएट ए रिदम और टू गिव ए ग्रेटर एम्फसाइज। ओके, चलो सेंटेंस में चलो। देखो एग्जाम्पल दिया गया, पहला एग्जाम्पल जो है, I have to practice my tables over and over again to learn them. देखो ओवर एंड ओवर नहीं है, उसके साथ और भी स्ट्रेस दिया और भी एम्फसाइज कर दिया, ओवर अगेन।
तो ओवर एंड ओवर एंड ओवर, तो ग्रेटर एम्फसाइज हो गया ना, इसको कहते हैं रिपीटेशन. द लाइन एम्फसाइजेस ऑन द वर्ड ओवर बाय रिपीटिंग द वर्ड मल्टीपल टाइम्स. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इट इज माय होम स्वीट होम. ये केवल मात्र होम नहीं है, ये मेरा स्वीट होम है. तो होम के ऊपर देखो यहाँ पे ज्यादा एम्फसाइज किया, तो ये हो गया क्या तुम्हारा रिपीटेशन. द लाइन एम्फसाइज ऑन द वर्ड होम बाय रिपीटिंग द वर्ड मल्टीपल टाइम्स. और थर्ड एग्जांपल में चलो, रेन रेन गो अवे. तो यहाँ पे भी देखो रेन के ऊपर ज्यादा सा एम्फसाइज देने के लिए वहां पे मल्टीपल टाइम्स यूज किया गया रेन को. तो ये भी हो गया तुम्हारा रिपीटेशन. द लाइन एम्फसाइज ऑन द वर्ड रेन बाय रिपीटिंग द वर्ड मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड रिपीटेशन. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में हम जाएंगे. देखो पर्सनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? In personification, poet or author shows a life or human being in a non-living bird or object. Personification होता है कोई एक वस्तु नॉन लिविंग होता है ना, या बर्ड और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर अगर लाइफ डालता है, जीवन दान होता है, वो ऐसे कुछ काम करता है जैसे वो ह्यूमन बीइंग है, तो इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने वहां पे दिया, देखो, द सन स्माइल डाउन ऑन अस. सन तो कभी हंस नहीं सकते, सन तो कभी भी हंस नहीं सकते, तो सन हंस रहा है मतलब वो ह्यूमन बीइंग के जैसे काम कर रहा है, तो इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन. जैसे कोई नॉन लिविंग जो होता है, जैसे सन नॉन लिविंग है, या बर्ड और कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वो ह्यूमन बीइंग जैसा वो उसका आदत होता है सेंटेंस में, उसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन. एग्जाम्पल में हम आ जाएंगे. देखो, जस्टिस इज ब्लाइंड एट टाइम्स डीप. जस्टिस विचार जो होता है वो ब्लाइंड होता है और डीप भी होता है, तो वो तो ह्यूमन बीइंग के जैसा ही यहाँ पे बिहेव कर रहा है, जस्टिस है ना. तो जस्टिस तो नॉन लिविंग है, पर वो बिहेव कर रहा है ह्यूमन बीइंग के जैसे. जैसे ब्लाइंड तो ह्यूमन बीइंग ही होता है, तो ये हो गया पर्सनिफिकेशन. जस्टिस को तुम ऐसे कुछ रूपदान दे रहे हो जो ह्यूमन बीइंग के होता है. मनी इज द ओनली फ्रेंड दैट वन कैन काउंट फॉर. यहां पे भी देखो, मनी को तुम फ्रेंड जैसा यूज कर रहे हो. फ्रेंड क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है, तो मनी को भी तुम फ्रेंड बोल रहे हो. तो मनी इज द ओनली फ्रेंड दैट वन कैन काउंट फॉर, दैट वन कैन डिपेंड फॉर. तो ये हो गया क्या ना, फिगर ऑफ स्पीच. द लाइन शोज दैट मनी इज नॉन लिविंग, तब भी मनी इज अ फ्रेंड ऑफ ए मैन. जैसे एज इफ मनी हैज अ लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जैसे मनी एक ह्यूमन बीइंग है. थर्ड सेंटेंस में चलो, थर्ड जो एग्जांपल दिया गया, माय अलार्म क्लॉक येल्स एट मी इन द मॉर्निंग टू वेक अप. अलार्म क्लॉक जो मेरा है, मेरा जो अलार्म क्लॉक है, वो सुबह में मुझको चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है कि जगो जगो, वेक अप वेक अप. द लाइन शोज दैट द अलार्म क्लॉक इज अ ह्यूमन बीइंग and has a sense of screaming and yelling to make someone wake up. जैसे उसका कोई एक सेंस है स्क्रीमिंग करने के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग स्क्रीमिंग करते हैं ना, चिल्लाता है, स्क्रीमिंग और yelling to make someone wake up. तो ये भी हो गया तुम्हारा पर्सनिफिकेशन. ओके, चलो नेक्स्ट में हम जाएंगे. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. इन पैराडॉक्स, one views is opposite to other opinion. One opinion is opposite to other opinion. Using paradox, readers are bit confused as one opinions how it is contradictory to other opinion. पहले तो तुमको बोले तुम अच्छा हो, पर बाद में बोले तुम बुरा हो. क्या निकल गया उसमें? एक बार अच्छा बोल रहा है, एक बार बुरा बोल रहा है, तो इसको कहते हैं पैराडॉक्स. जैसे एग्जांपल में क्या, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट. पहले तो बोल रहा है भाई कर सकते हो, फिर बोल रहा है उसको स्पेंड भी करना होगा. You can save money and by spending it. How can I save money by spending it? It's a contradictory, no? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, paradox. The line shows save and spend. Those are contradicting each other. Those are contradicting each other. Next example में चले जाओ. The more you impress people, the less impressed they will be. पहले तो readers जो है ना, वो तो सुना कि भाई मोर इंप्रेस करने से मोर ही तो होगा, पर वहां पे लेस इंप्रेस दे दिया. तो द लाइन शोज मोर एफर्ट यू आर गिविंग बट प्रोड्यूसिंग लेस रिजल्ट. दोज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर.
एंड फाइनली जो एग्जांपल दिया गया, द मोर यू फेल द मोर लाइकली यू आर ऑन वे टू सक्सीड। जितना बार तुम फेल करोगे क्या होगा, तुम्हारा तो पतन होगा ना, पर यहाँ पे तुम्हारा सक्सेस दे दिया। द मोर यू फेल द मोर लाइकली यू आर ऑन वे टू सक्सीड। तो द लाइन शोज मोर फेलियर एंड देन इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ सक्सेस। They both are contradicting to each other. So these are types which we can say paradox. Okay? Next है, नेक्स्ट में देखो ऑक्सीमोरन दिया गया। ये ऑक्सीमोरन क्या होता है? इन ऑक्सीमोरन टू वर्ड्स आर ऑपोजिट, मतलब साथ साथ दोनों वर्ड दिया जाता है, वो दोनों अलग अलग मतलब ऑपोजिट मीनिंग होता है, उसको कहता है ऑक्सीमोरन। जैसे इट इज ए फ्रेज और यू कैन से कॉम्बाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे डिफेनिंग साइलेंस। डिफेनिंग का मतलब क्या होता है? डिफेनिंग का मतलब होता है बहुत जोर शोर, वो होता है डिफेनिंग। और साइलेंस क्या होता है? नीरव, चुपचाप। तो एक तो तुम बोलते हो भाई ओवर माइक डिफेनिंग, उसके बाद तुम बोलते हो साइलेंस। तो ये दोनों अलग हो गया ना, ऑपोजिट हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, दोनों साथ साथ जो वर्ड दिया। तो देखो वहां पे मैंने लिख दिया, डिफेनिंग मीन्स ओवर माइक साउंड, साइलेंस मीन्स लाउड साइलेंस। तो ये क्या हो गया, मतलब इसका कंप्लीट साइलेंस को रेफर कर रहा है, इसका मतलब होता है कंप्लीट साइलेंस। अदर एग्जांपल्स आर लिविंग डेड। एक तो लिविंग होता है, फिर डेड कैसे आ गया? नाउ आई एम वॉकिंग लाइक ए लिविंग डेड। जैसे लॉयल अपोजिशन, ऑफुली गुड। ऑफुली तो होता है भयंकर, भयानक, और गुड भी होता है उसका ऑपोजिट वर्ड, अच्छा। बिटर स्वीट, तो दोनों ऑपोजिट आ गया। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल तो होता है ओरिजिनल जो होता है ना, जो डुप्लीकेट होता है वो कॉपी होता है। तो एक बार तो तुम ओरिजिनल बोल रहे हो और दूसरे बार तुम कॉपी बोल रहे हो। सीरियसली फनी, ये दोनों अलग अलग किस्म का जो वर्ड एक साथ आता है, दोनों ही ऑपोजिट होता है, इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अभी एग्जांपल पे चलते हैं। Having walked 20 miles, we are now walking dead. The line shows a phrase walking dead together. They are contradicting each other. Okay, walking और dead दोनों contradictory होता है ना। और सेकेंड एग्जाम्पल में जाओ, गिव मी द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। एक बार तो तुम बोल रहे हो ओरिजिनल, दूसरे बार तुम बोल रहे हो कॉपीज। द लाइन शोज ओरिजिनल एंड कॉपीज टुगेदर आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। एंड थर्ड एग्जाम्पल, एवरीवन वाज अमेज्ड एट हर फुलिश विजडम। तो फुलिश तो एक वर्ड होता है, मूर्ख, एंड विजडम ज्ञानी होता है। तो मूर्ख और ज्ञानी दोनों जो वर्ड है, ये तो अलग किस्म का वर्ड हो गया, मतलब ऑपोजिट पेयर हो गया। The line shows foolish and wisdom together are contradicting each other. So these are called oxymoron. Okay. The next figure of speech में हम जाएंगे. Next figure of speech is climax. Climax refers to a series of actions or ideas in an ascending order. Climax क्या होता है? Climax होता है a series of actions in ascending order. जैसे एक एग्जाम्पल में जाओ, क्या दिया गया देखो। पहले एग्जाम्पल जो दिया गया, रोमियो एंड जूलियट फेल इन लव। पहले तो उन्होंने आपस में लव किया, फिर वो मैरी किया, एंड देन दे गेट मैरिड। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में गया ना, पहले एक चीज हुआ, उसके बाद और एक चीज गया, इसको कहते हैं क्लाइमैक्स। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में चले जाओ, लुक अप। पहले तो तुमको ऊपर देखना है, फिर देखो एक बर्ड, इट्स ए बर्ड, फिर थोड़ा सा आप जाओ, फिर देखो तुम प्लेन, और भी आगे देखो, देखो सान वहां पे हमसे हंस रहा है, इट्स अ सान लाफिंग एट अस। तो तुम्हारा जो ऑर्डर जा रहा है वो एक के बाद एक हो रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से वो जा रहा है, इसको कहता है क्लाइमैक्स। और थर्ड सेंटेंस में चलो, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन मीन्स वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। पहले तो तुमको क्या करना है, एक स्मॉल स्टेप देना है, फिर तो तुम कुछ कर सकोगे लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए वो सेंटेंस जो दिया गया, पहले स्मॉल फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। दिस लाइन आल्सो शोज द सिमिलर सीरीज ऑफ एक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट मैन शुड प्रोसीड फॉर ए स्मॉल इन्वेंशन। पहले स्मॉल इन्वेंशन करो भाई, उसके बाद पहले स्मॉल इन्वेंशन करो, फिर उसके बाद मैनकाइंड में एक चेंज आ जाए विथ ए जायंट लीप इन लॉन्ग टर्म। तो ये सारी चीज होता है क्लाइमैक्स। नेक्स्ट चीज हम जाएंगे एंटी क्लाइमैक्स। यहां देखो एंटी क्लाइमैक्स आ गया।
एंटी क्लाइमैक्स इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑपोजिट आइडियाज और एक्शंस। यहाँ पे क्लाइमैक्स में क्या हो रहा था, वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। जैसे हायर टू लोअर, इसका जो ऑर्डर होगा पहले हाई आएगा, उसके बाद लोअर, देन लिस्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट से शुरू होगा, देन लिस्ट इंपॉर्टेंट से वो जाएगा। एग्जाम्पल में चलो, ही लॉस्ट हिज फादर, पिता को वो लॉस किए, उसका सपोर्ट को भी वो लॉस किए, फिर उसका आइडेंटिटी चला गया। ये देखो, पहले जो ग्रेटर एम्फसाइज था फादर, उसको पहले लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंस है, हिज सपोर्ट, वो आ गया। और लास्ट में जो लीस्ट इंपॉर्टेंस है वो है आइडेंटिटी, वो लास्ट में चला गया। दिस लाइन शोज a series of actions in descending order. First he lost his father, then support, and then his identity. मतलब higher to lower, descending order. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, ही इज ए ग्रेट ऑथर, ही इज ए ग्रेट ऑथर, फिर एक फादर एंड देन ए सपोर्टर। तो दिस लाइन ऑल्सो शोज अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ही इज ए ग्रेट, देन रैंक्स गोज डाउन टू ए फादर, एंड फाइनली जस्ट ए सपोर्टर, हायर टू लोअर। एंड लास्ट एग्जाम्पल, ही वॉज वंस ए रिनाउंड सिंगर। पहले तो वो बहुत अच्छा सा एक सिंगर था, फेमस सिंगर था। Then he became an ordinary man in the industry by losing his voice. उसका वॉइस चला गया, वो गाना नहीं गा सकते थे। फिर वो क्या हो गया, एक ऑर्डिनरी मैन हो गया। एंड नाउ ही इज वर्किंग एज ए क्लार्क ऑफ ए कंपनी। फिर अभी तो वो एक कंपनी में क्लार्क ही है। तो दिस लाइन ऑल्सो शोज अ सिमिलर सीरीज ऑफ एक्शंस फ्रॉम हायर टू लोअर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फेम व्हेन ऑर्डिनरी क्लार्क। These are called anti-climax sentences. And finally, we will come to imagery. Imagery क्या होता है? Imagery refers color, sound and tastes, smell in one's mind through imagination. Imagery में क्या चीज होता है? एक तो होता है कलर, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल होता है, जो रीडर्स का माइंड में आ जाता है थ्रू इमेजिनेशन, वो होता है इमेजरी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो, द ग्रास इज ग्रीन, द फ्लावर्स आर रेड। यहाँ पे दाहिने तरफ मैंने लिख दिया कि कलर। जैसे ये सेंटेंस जब रीडर्स के दिमाग में आएगा तो वो कलर के जैसा उसका इमेजिनेशन आ जाएगा, मतलब वो कलर दिखेंगे उसके इमेजिनेशन में। कलर और फ्लावर्स का तो रेडी होता है, वो गुलाब जैसा एक फीलिंग्स आ जाएगा, वो गुलाब जैसा एक फीलिंग्स आ जाएगा। The line shows a reaction in reader's inner mind of the color of green grass and the color of red flowers. तो ये होता है imagery। और दूसरे एक एग्जांपल में दिया गया, देखो, the roaring thunder frightened the little boy। हाँ, वो जो क्लाउड का जो गर्जन था, वो लिटिल बॉय ने उसको सुन के वो डर गया, मतलब इसमें साउंड का इफेक्ट हो रहा है। तो ऑथर जब ये सेंटेंस दिया गया, मतलब रीडर जब इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो उसका दिमाग में एक साउंड इफेक्ट आ जाएगा। The line shows a reaction in reader's inner mind of the awful sound that made the little boy frightened. Similarly, the last example is given, the salty and scented sweet melted on her tongue. यहाँ पे देखो टेस्ट एंड स्मेल का सवाल है। जैसे स्वीट क्या होता है, वो सॉल्टी है, एंड सेंटेड, उसका अंदर एक सेंट भी आ रहा है, मतलब टेस्ट भी आ रहा है और स्मेल भी आ रहा है। तो उसके हिसाब से ये सेंटेंस लिख दिया गया। तो दिस लाइन्स आल्सो शोज अ रिएक्शन इन रीडर्स इनर माइंड ऑफ टेस्ट्स एंड स्मेल। तो दीज आर द इमेजरी अंडर फिगर ऑफ स्पीच। तो हाउ वाज माय क्लास? इफ यू बेनिफिट फ्रॉम माय क्लास, देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर as many as possible. ওকে, সাবস্ক্রাইব করলো, লাইক করলো, কমেন্ট করলো, শেয়ার করলো as many as possible। যদি তোমাদের ক্লাসটা ভালো থাকে, ইংলিশ ক্লাস ধ্যান মন্ত্র, ইংলিশ ক্লাস ধ্যান মন্ত্র নামটা মনে রাখবে, এবং সবাই যত পারো শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। আজকে এই অবধি। কেমন লাগলো বন্ধুরা? তাহলে পুরো ব্যাপারটা, সেশনটা ভালোই লাগলো আশা করি। আমি যতটা পেরেছি বোঝাতে পেরেছি, যদিও আমি বাঙালি, তবু আমি তোমাদের হিন্দিতে বলেছি কেন, যাতে একটা গ্রেটার এক্সপেনশন থাকে, যাতে যারা হিন্দিভাষী তারাও যাতে বুঝতে পারো। তো আজকে আমি এই অবধি, পরের দিন আবার একটা নতুন এপিসোড নিয়ে আসবো। যত বেশি পারো এটাকে শেয়ার করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অল নোটিফিকেশন বেলটাকে অন করে নাও, যাতে কিনা যখনই কোনো ভিডিও আমি বের করবো তোমাদের
মোবাইলে সেটা নোটিফিকেশন চলে আসে। থ্যাংক ইউ, এলাম।